Welcome to our channel. This is Savan here. Right, Sandeep this side. ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, that people are students are moving to the other countries for their higher education, as well as they are looking for the jobs in the respective countries, okay, like USA, America, USA, England, Australia, Canada. They are moving to those countries. So we are going to discuss about the main reasons that why the students are moving to the other countries, and at the end we will try to make you understand that how important is to stay yourself in this country. What do you think, sir? Yeah, I must say it's a great topic today. मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा आपकी कि आजकल के टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ not ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, USA ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, but in some other Asian countries also, like Dubai, Singapore, wherever they just want looking for a work, they just prefer to go wherever they just want to go. But यहाँ ਇੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? Yes. Because everybody just want to run their own business, everybody just want to earn a good money. Yeah. ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. Yeah. everybody just going abroad ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ. ਦੇਰ ਆਰ infinity of information that we have for us who will inspire us that there are so many people who have been working hard in order to get jobs, and they have been establishing their business in this country. So bahar jana is not the only option we have left. Yeah. Okay, bahar ja sakte ho, but everybody is thinking about going to abroad. This is not the right way, for the country's youth. ब्रेन ड्रेन हो रही है, हम सब तो जानते हैं. सर अब क्या आपको क्या लगता है, क्या मेन कारण है बाहर जाने का? कोई कारण बता सकते हैं आप? अगर मैं बात करूँ ना इसी चीज़ के ऊपर, लोगों को लग रहा है कि इंडिया में या पंजाब में जॉब्स की कमी बहुत ज़्यादा है. ओके. राइट. या हर बंदा सोचता है कि यार मैं यहाँ पे रह के करूँगा क्या, मेरे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है मेरे पास, या अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा अच्छा नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँगा, सर्वाइव कैसे करूँगा लाइफ में, या कैसे है. बट अगर मैं बात करूँ ना, ये एक बहुत ही बड़ा गलत सोच है लोगों की इस बारे में कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट की जा सकती हैं. ठीक है सर. अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर, फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो वहाँ पे दे जस्ट वांट टू बी अ स्लेव ऑफ दैट कंट्री, राइट? दे हैव टू वर्क एज अ स्लेव. किसी के अंडर काम करना पड़ेगा उनको. बट अगर वही चीज़ यहाँ पे वो रह के काम करें, किसी के अंडर नहीं, अपना कुछ बिजनेस शुरू कर लें, छोटे से छोटा बिजनेस शुरू कर लें, तो मेरे को लगता है कि दे कैन अर्न मोर दैन दैट. एंड द मेन थिंग इज़ वो अपनी फैमिली के पास हैं. फैमिली के पास हैं. जो सबसे बड़ी मेन चीज़ आती है जब फैमिली अपने बच्चे को किसी अदर कंट्री में भेजती है, सबसे बड़ा उनके लिए झटका ही इसी चीज़ का आता है कि अब मेरा बच्चा कैसे रहेगा वहाँ पे. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट. यस. तो आपको क्या लगता है इस चीज़? सर मेरे अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स की जो मतलब इंक्लिनेशन है ना, वो बाहर की तरफ इस वजह से, क्योंकि ट्रेंड बना हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. अदरवाइज हाँ, इन्फ्लुएंस्ड है. अदरवाइज देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल हेयर. बट द थिंग इज़ दैट वी डोंट वांट टू डू दैट. हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें वही इजी वे लगता है कि हम डॉलर्स में कमाएंगे, तो इसलिए दैट वी शुड इमीडिएटली मूव टू दोज कंट्रीज़. बट हेयर बहुत सारा स्कोप है. आप किसी भी फील्ड में काम करो, उसमें आप शाइन कर सकते हो विद द रिगरस हार्ड वर्क. और यहाँ पर रह के आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी मेरे अकॉर्डिंग. दिस इज़ द मेन रीज़न ना. लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे, अच्छा कमाएंगे, डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं, ये है वो है, बट उनको ये नहीं पता कि उनके वो जो उनसे कमा रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. बिल्कुल. सबसे बड़ी बात, अगर मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, $1,000 पर मंथ एक बंदा कमा रहा है वहाँ पे. अगर $1,000 वो बंदा कमा भी रहा है, उसमें उसको रेंट भी देना है, अपने खाने का खर्चा भी निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन भी निकालनी है, ग्रॉसरी करनी है. हाँ. सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है जो निगलेक्ट की जाती हैं यहाँ के बच्चों को
और इन्फ्लुएंस होते हैं उनके लाइफस्टाइल से, बट दे डोंट नो हाउ दे आर जस्ट लिविंग ओवर देयर, यस हाउ दे आर जस्ट डूइंग द सेविंग्स, यस कितनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो। यस सर मैं अभी सोच रहा था कि आज से जब 30 साल पहले हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं बाहर जाते थे। यही तो बात है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे बाहर जाना एक कंपल्शन थी, और मेरे अकॉर्डिंगली बाहर जाना अभी भी कंपल्शन ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, बिकॉज यू आर लिविंग योर कंट्री, यू आर लिविंग योर कल्चर, यू आर लिविंग योर रूट्स। और जब हम रूट्स अपनी छोड़ देंगे फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ स्टेटस, सो क्या फ़ायदा उस चीज़, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, इसमें यही चीज़ आ जाती है ना, देखो अगर बंदा बाहर गया है, like they are just spending a 5 years over there, they have to spend 5 years to get the PR, and after that just for the settlement for the family they have to spend more 3 years. Yes. So it's approximately 7 to 8 years Yes. they have to spend over there without family, without anything. But अगर मैं वही बात करूँ, अगर वो 2 साल अपने जोन से 7-8 साल वो वहाँ पे लग रहा है, कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है, अगर उसी में से सिर्फ 2 साल अपने यहाँ पे रह के अपने आप को दे दे, आई मस्ट से कि वो बंदा सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। ठीक है सर। और सर एक मुझे और कारण दिख रहा है, बहुत बड़ा कारण है, जो मैं हमेशा पेरेंट्स की तरफ से कंसर्न होता है ये, कि यहाँ पर पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा है। ये तो हर इस टाइम पे हर न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है, हाँ, पंजाब नशे में तो डूब रहा है। इसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो मतलब चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से निकल जाए और किसी और कंट्री में सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो नशे में पड़ जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? सर इसके अगर मैं बात करूँ ना, इसके ऊपर ये भी एक हमारे माइंड का सेटअप ही है। हमारे माइंड में ये गेम चल रही है कि पंजाब में नशा है, बाहर नशा नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना, आई ऑल्सो स्पेंड 3 years इन सिंगापुर। ओके। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, पंजाब से ज़्यादा नशा वहाँ पे बिकता है। हाँ जी। और लीगल वे में बिकता है। जी जी सर। और अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं ना कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज देता हूँ, बाहर जाके सेट हो जाएगा, गलत संगत में नहीं पड़ेगा, ये वो, ये सबसे गलत सोच है अपने उनके पेरेंट्स की। यहाँ मैं बात करूँगी, हर पेरेंट की ये गलत सोच है कि बाहर जाके बंदा बिगड़ता नहीं है, बाहर जाके बंदा ज़्यादा बिगड़ता है, क्योंकि काउंसल करने वाला उनको कोई होता यहाँ पे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंट्स हैं साथ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, अगर मैं कुछ गलत करूँगा वो मेरे को डांटेंगे, मेरे को समझाएंगे, मैं समझ भी जाऊँगा उन चीज़ों को, बिकॉज वो मेरे को भी पता लगेगा कि हाँ ये मेरी फैमिली के लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है एट द एंड ऑफ द डे। बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, वहाँ पे बच्चे चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं फैमिली से। द मेन रीज़न जो मैंने फेस किया था सिंगापुर में जब मैं था, मेरा फ्रेंड था वहाँ पे मेरे से पहले गया हुआ था, 2 years ही ऑलरेडी स्पेंड ओवर देयर। उसने मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोली, कहता यहाँ पे कौन सा पेरेंट्स देख रहे हैं, कर ले यार, ड्रिंक कर ले, उसमें क्या है, यहाँ कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई कौन सा कुछ देख रहा है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द फन। सो आई जस्ट रियलाइज दिस थिंग, व्हाई आई एम नॉट, why I just leave my country, why I just leave my parents, इन चीज़ों के लिए नहीं ना। क्या करने आया हूँ यहाँ पे, अर्निंग करने आया हूँ। इट मीन्स द मेन मोटिव ऑफ द एवरी पर्सन इज अर्निंग, पैसा। आई जस्ट रन माई ओन बिजनेस एंड आई जस्ट डिड जॉब्स। सो मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि जो मैं स्ट्रगल वहाँ पे कर रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट आई एम अर्निंग द सेम मनी। मैं सेम अर्निंग कर रहा हूँ, सेम रिस्पेक्ट, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट एक्चुअली रिस्पेक्टिव है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्री। देन फैमिली के पास हूँ मैं, सबसे बड़ी बात। अगर भगवान ना करे किसी की फैमिली में कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आना पड़े, देन हाउ आई जस्ट केम ओवर हियर। तो यहाँ पे रह के अपनी फैमिली का ध्यान रखना और बिजनेस करना, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आपके हिसाब से ये है कि मतलब जो पेरेंट्स के अंदर एक नोशन बनी हुई है कि ड्रग्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ बहुत कम हैं, और बच्चे ड्रग्स का मतलब कंज्यूम नहीं करेंगे वहाँ पर जाके, इसकी उनको एश्योरेंस है। ये उनका एक जस्ट अ हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट अ ट्रू थिंग। इवन दो कि बच्चे वीड मतलब यूज कर रहे हैं, 1 ounce ऑफ ड्रग्स इज अलाउड टू हैव। कनाडा में देख लो, ज़्यादा दूर क्या जाना है, कनाडा ने लीगल कर दिया हुआ इन चीज़ों को। दे ऑफिशियली अनाउंस दिस थिंग। तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि वहाँ पे जाके वो चीज़ों में नहीं पड़ेगा ऐसे। उनको इतना अपने बच्चे पे है कि नहीं करेगा वो। अरे बच्चा यहाँ पे नहीं कुछ कर रहा तो वहाँ पे जाके क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। पहले उसको यहाँ पे तो खड़ा करो, उसको यहाँ पे तो स्टैंड करो, उसको देखो तो सही वो यहाँ पे कर भी पा रहा है कुछ के नहीं। ये भी बहुत सही सर। टीन एज मतलब
किशोर अवस्था में बच्चे को हाँ, बेच दिया जाता बिल्कुल है, बिल्कुल जिसमें उसको बिल्कुल मेच्योरिटी नहीं मेच्योरिटी नहीं होती है, कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट फॉर बिल्कुल सर, हिम और हर. सो इन दैट सिचुएशन दे इजीली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैड थिंग्स, बाय द बैड इवल्स. absolutely they will, या सर. and they have to do all those things because they just want to live a luxury life, यस. राइट. सो उस चीज के पीछे भागने के टाइम पे वो भूल जाता है कि दे हैव अ फैमिली, दे हैव देयर पेरेंट्स, दे हैव अ सिस्टर, दे हैव अ ब्रदर एट होम, बट दे जस्ट वांट टू लिव द करंट सिचुएशन. यस सो उस चीज़ को निगलेक्ट करके वो इन चीज़ों में जब जाता है ना, देन आई थिंक सबसे गलत चीज़ ही पेरेंट्स के लिए, सबसे बुरा टाइम ही पेरेंट्स के लिए वो चीज़ का हो जाता है कि जब वो उनका लड़का या उनका बच्चा या उनकी बच्ची उनको निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. सर आपकी फ्रेंड से नहीं बात होती, जो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो आप, जैसे हम दोनों पंजाब से, सॉरी, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स अब्रॉड होंगे, हैं. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं ड्रग सिचुएशन के बारे में? अरे बुरा हाल है उनका बाहर, आउट ऑफ कंट्री जाके देखो, बुरा हाल हुआ पड़ा है. सबसे बड़ी बात बताओ क्या है, जोन से फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं बात करूँ अपने फ्रेंड्स की, तो मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं वो स्टिल दे जस्ट से दिस थिंग, यार पंजाब में सही था, यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग अच्छी थी, फैमिली के पास थे हम, अगर मैं वहाँ पे कुछ कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, मैं इतना पैसा लगा के आया हूँ, वापस भी जाऊँगा नहीं सही लगेगा, राइट. ही इज़ राइट ऑल्सो, दे आर राइट, बिकॉज यू आर जस्ट स्पेंडिंग 14 to 15 lakhs जस्ट टू गो अब्रॉड. अगर तुम 14 से 15 लाख रुपया बाहर जाने के लिए खर्च रहे हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं ज़्यादा कह रहा, 1 लाख रुपया भी तुम अपने बिजनेस को सेट करने के लिए लगा दोगे ना, एंड आई एम डैम श्योर आफ्टर 2 or 3 years वही 14-15 लाख आपको 30-40 लाख रुपया बना देगा. ओके. जो इमेज यहाँ बनाई हुई है लोगों ने कि बाहर जाओगे तो लाइफ बहुत लग्जरी हो जाएगी, मतलब पैसा ही पैसा आएगा, बट ऑन दी अदर हैंड यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग. हाँ, You have to forget your relatives, you have to forget your family, you have to forget Definitely. your culture, your festivals. You will miss everything, and eventually you will get to know that you are seeking nothing. nothing sir. Yeah. At the end of the day, what you have in your hand, Yeah. you are not able to share your happiness with anyone Yeah. when you are just living over here. Okay. सर एक क्वेश्चन मेरा और है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता. ये लोगों की ना मेंटालिटी बनी पड़ी है, बिजनेस नहीं है यहाँ पे. Okay. यू आर ऑल्सो डूइंग अ जॉब, राइट, आई एम Okay. ऑल्सो डूइंग अ जॉब. अगर मैं भी जॉब कर रहा हूँ, आप भी जॉब कर रहे हो, देन इट डजेंट मीन कि जॉब अच्छी नहीं है तो मैं बाहर चला जाऊँगा. मैं अपना खुद का भी कुछ शुरू कर सकता हूँ. अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, इट मीन्स आई हैव अ टैलेंट इन माई हैंड्स, मेरे पास कुछ है जो मैं कर रहा हूँ. तो अगर मेरे पास ये जॉब भी नहीं रहती है, देन आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस Yeah. एट लो प्राइस. Yeah. मैं कुछ ना कुछ शुरू कर सकता हूँ बिकॉज बिल्कुल मेरे पास सही. टैलेंट है. बिल्कुल सही. तो अगर वही चीज़ बंदे के पास कुछ है ही नहीं है, उसके हाथ में ना उसके पास टैलेंट है ना कोई स्किल्स है, वो बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री चला गया है, देन व्हाट ही डू. हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि हम यहाँ बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं, बट सर अगर आपका आप बिजनेस माइंडेड हो तो आपने बिजनेस ही करना है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली बाहर जाके बिजनेस करना इज़ वे मोर डिफिकल्ट. It's quite difficult. sir. Yes, it's quite way more difficult. because you have to take a lots of permissions from the Yeah, government, yeah. and you have to take a lots of paperwork and all. But if I just say about India or in Punjab, if you want to do any kind of job, what you have to do? You have to take a permission हाँ. from where? Yeah. From corporation Yes, yes, or yes. for the income tax. Oh, Yeah. sorry, not income tax, improvement trust. Yeah. जिस एरिया में वो है उस वहाँ के मेन हेड की परमिशन चाहिए, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. Yes, yes. बट द मेन थिंग इज, डू यू नो व्हाट, हर एक बंदा यहाँ पे बिजनेस करना जब चाहता है ना, वो चाहता है कि मेरे लिए ना एक मेरे पापा एक एम्पायर खड़ा कर दें जहाँ पे मैं एक गद्दी लगी हो, जहाँ पे मैं जाके बैठ जाऊँ, नौकर चाकर नीचे काम कर रहे हो और मैं आराम से सारा काम करता रहूँ और मेरे को पैसे आते रहें. और बिल्कुल सर, जैसे कि हम मतलब जैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम वहाँ पर अब्रॉड जाते हैं तो हमें कौन सी वाइट कॉलर जॉब मिलनी है, तो Absolutely. दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस organizations. Definitely. Yeah, so that is why, because of those reasons, we will never be succeeded. We will definitely have a midlife crisis early in our life. Do you know what? There are lots of people just think about this thing
कि वहाँ पे जाएंगे ना वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, इतना पैसा कमाएंगे। एंड आई मस्ट से कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली लिमिटेड टाइम है जॉब्स करने के लिए। अब वाइट कॉलर जॉब में लिमिटेड टाइम के लिए ही जॉब कर सकते हो, लिमिटेड आवर्स के लिए जॉब कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू अर्न मोर यू हैव टू डू इन लीगल वर्क्स, लाइक इन लीगल जॉब्स विच इज़ नॉट इन योर आवर्स, बट उसी चीज़ के लिए समटाइम्स दे हैव टू सफ़र द थिंग्स। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैम्पर हो जाती हैं उन लोगों के ऊपर, उन स्टूडेंट्स के ऊपर, जो जहाँ वहाँ पे जाके सोचते हैं कि चल अब आ गए हैं, चल पैसा कमाते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अर्न। वो सिर्फ वहाँ पे गए हैं उनके नौकर बनने के लिए, बिल्कुल सही बात वो नौकरी करने गए हैं। एंड आई मस्ट से यू कैन टेक इट इन अ रिटर्न कि जो बंदा बाहर जाता है, बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता वो, बिकॉज उसकी मेंटालिटी बन चुकी है जॉब करने की, किसी के अंडर काम करने की, प्रेशर नहीं इतना चाहिए, टेंशन नहीं इतनी चाहिए, बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं इतनी चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर जाती है उनके ऊपर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी स्टूडेंट है वो स्टडी वीज़ा पे गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? स्टडी। बट अब अपने लोग तो क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर? नौकरी करने, पैसा कमाने। व्हाट इज सर गोइंग ऑन? यही तो दिक्कत है ना यहाँ की। मतलब एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, बंदा किस वीज़ा पे जा रहा है? वो स्टडी वीज़ा बोल के जा रहे हैं। स्टडी है ना, इट्स स्टडी वीज़ा, तो बेसिकली स्टडी है। तो अगर बंदा स्टडी पे नहीं फोकस कर पा रहा तो अपनी लाइफ पे क्या फोकस करेगा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है ये। देखो हम स्टडी वीज़ा लेके जा रहे हैं, ठीक है, और स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे, और इवन दो हम यहाँ से सोच के ही जाते हैं वी जस्ट नीड अ पीआर, एंड पीआर चाहिए, पीआर हम पीआर ले लेते हैं, यहाँ पे कोठी पाएंगे, गाड़ी लेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इससे आगे मेंटालिटी नहीं है कुछ। एजुकेशन के आगे मतलब कुछ हमें एजुकेशन तो हमने गेन करनी नहीं। और आई मेक श्योर दैट वंस दे विल गेट अ पीआर दे विल डेफिनेटली फेड अप, क्योंकि मतलब what they have to do after this after that, after getting a PR, what they have to do? ट्रक चलाएंगे, yes, Uber Eats करेंगे, because they don't have that much education, they can do a work, they just find a work or good job in a MNC companies. Yes. So this is the main reason there are lots of people just think they are not able to get a job in a good organizations. Reason ही यही है because अरे कोई भी organization है, कोई भी MNC companies है, क्यों जॉब प्रोवाइड करेगी? तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है, बिल्कुल। जब तक तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है देन व्हाई दे जस्ट पे यू? सर मुझे एक किस्सा याद है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वेंट टू कनाडा फ्यू ईयर्स बैक, ड्यू टू सडन रीजंस ही हैड टू कम बैक टू आवर कंट्री, and when he came back, you know, he had to work just for 15,000 per month in India because he didn't have any experience. He was completely fresher, so he stayed 4 years in Canada but he didn't get anything. This is the main reason, sir. I must say, अगर किसी बंदे ने बाहर जाने का सोचा हुआ है कि हाँ यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, मैं जाना ही जाना है, तो then I must say they have to learn a single skill. Yes. True. कोई भी स्किल उसको सीख के जानी पड़ेगी, ताकि when he or she just went to some other country they can start earning from that skill. Yes. ठीक है, बट नहीं, वो चीज़ भी नहीं है हमारे यहाँ पे, वो चीज़ भी नहीं आती है। यहाँ पे आता है कि हाँ बस जाना है, बट ये नहीं पता एक बार भेज दो, बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। बट बाद में लिटरली आई हैव few examples with me who claimed that how hard is for them to sustain in that atmosphere. They had to study, which they don't like to do that. Okay, apart from that they had to do a work, part-time work also. So मतलब दोनों को मैनेज करना it's a difficult task, I think so. Quite difficult task. So मतलब इस प्रोस्पेक्टिव से हम जाएंगे तो हम पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे अच्छी तरह से. But the main thing is बाहर जाना क्यों है? अगर लोग कह रहे हैं, लोगों की सोच है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे बिजनेस नहीं है, अरे अमृतसर में इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ कमा रहे हैं तो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ अर्निंग्स कर रहे हैं, कोई बिजनेस उसमें चल रहा है, तभी तो वो कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी बाहर चले जाते हैं। सर कहीं ना कहीं लोगों में डेस्परेशन है, मैं मानता हूँ। उनको ये लगता है कि वो डेस्परेशन है कि मतलब जल्दी काम होना चाहिए, और जल्दी में मतलब प्रॉब्लम आती है। They just want to earn a money, you can say,
in some seconds or in some Yeah, minutes. They yeah. just want these kind of things, Yeah. but it is not possible. They बिल्कुल। have to do struggle, they have to do hard work just to get that much reputation, you can say, and moreover you can say about that much earnings. You have to do a hard work, they have to do struggle, they have to face a lot of problems. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर कि लोग बोलते हैं यहाँ पर लाइफ की सिक्योरिटी नहीं, वहाँ पर लाइफ सिक्योरिटी है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? Are you serious about this thing? मतलब कहते हैं लोग, पेरेंट्स कहते हैं इवन दो, क्या सिक्योरिटी क्या चाहिए इनको? मतलब वो कहते हैं कि जैसे मतलब वहाँ पर सेटलमेंट है, चलो मतलब ज़्यादा नहीं तो मंथली कमा के अच्छा लाइफ तो सर मेरे गुजर को ये सकती है। बताओ, पेरेंट्स से दूर रह के कौन सिक्योर रहता है? हाँ ये भी बात है, सही बात है। पेरेंट्स से दूर चले गए हो, पेरेंट्स ही सिक्योर नहीं है अब, हाँ, अब पेरेंट्स भी नहीं सिक्योर और बच्चा भी नहीं सिक्योर। बच्चा भी नहीं सिक्योर, देन व्हाई हाउ दे जस्ट से दिस थिंग कि सिक्योरिट लाइफ सिक्योर है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही बात है। इट्स जस्ट अ मिथ। लोगों की ये सोच बनी हुई है कि वहाँ पे लाइफ सिक्योर है, लाइफ सेट हो जाएगी बच्चे की। अरे उसकी लाइफ सेट करने के चक्कर में तुम अपनी और उसकी भी लाइफ वर्स्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जोन सा स्ट्रगल वो वहाँ पे करने जा रहा है, तुम उससे वही स्ट्रगल यहाँ पे तो करवा के देखो वो कर भी रहा है या नहीं कर एटलीस्ट रहा। चलो मैं कहता हूँ ग्रेजुएट हो, 2-3 साल यहाँ देखे, बिल्कुल अगर सर। नहीं कुछ बन रहा तो तब Then अब्रॉड they जाने have- की सोचिए ना। देन आई मस्ट से वो ये ना सोच के जाए कि हाँ मैंने वहाँ पे जाके नौकरी करनी है, ठीक है, वो भी एक गलत बात है। बट द मेन थिंग इज उसको ये चीज़ चाहिए कि यहाँ पे अगर है ये दे हैव टू अर्न समथिंग। अगर वो बाहर जाने की सोच रहेगी आफ्टर ग्रेजुएशन, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बन रहा है तो मैं चला जाऊँगा, देन दे हैव टू फाइंड अ जॉब इन MNCs, इन मल्टीनेशनल कंपनीज। एक रेपुटेशन, एक रेपुटेटिव जॉब ढूंढे वहाँ पे जाके। सो वही चीज़ आ जाती है कि अगर वो बंदा बाहर जा रहा है सो उसको ये चीज़ चाहिए, ये मेंटालिटी, ये सोच लेके चलेगी हाँ अगर मैंने बाहर जाना है तो आई हैव टू डू जॉब इन MNCs, आई हैव टू स्टैब्लिश माई ओन बिजनेस। एक तो सबसे बड़ी बात यही है ना पंजाब की कि बिजनेस माइंड किसी का है ही नहीं आजकल। बिल्कुल सही बात दे है। जस्ट वांट टू बी अ स्लेव ओनली, मतलब हम मेट्रो सिटी से अब भी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल सर। अब आप देखो फॉर एग्जांपल लाइक इन दिल्ली, दिल्ली में आप जाके देखो मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट रनिंग देयर ओन बिजनेस। There are very few MNCs where the people do job, but most of the time the people just run their own business. So this is the main reason वो इतनी developed है। As compared to मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब में इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? अरे पंजाब में मैं बात करूँ, अगर पंजाब को कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल पार्ट है एक बहुत बड़ा ऑल ओवर उसमें इंडिया भी का, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट उसमें भी नहीं कुछ उसमें भी कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट ही नहीं है यंगस्टर्स गेहूं का। उगा लिया और चावल उगा लिया, हाँ, बस यंगस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं है ना। इंटरेस्ट नहीं है। गेहूं उगा लिया, चावल उगा लिया, इट्स ऑल अबाउट द पेरेंट्स। या यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं उस चीज को डेवलप करने के 70 लिए? even people have 70 acres 80 acres land, but still Definitely. they are not doing They anything just want to go abroad. to improve. Yeah, they just want to go abroad and they just need a life security. I don't I mean know why they how it just comes do- I don't know, but they still want. So ये हमारा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था, मतलब हमारा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि लोग जो अब्रॉड जा रहे हैं, मतलब ये सारे मिथ्स को लेके हम उन मिथ्स को ब्रेक करना चाहते हैं। इवन दो हमें भी बहुत लोग कहते हैं आप भी अब्रॉड जाओ, बट हमारा बिल्कुल भी इंटेंशन अब्रॉड जाने का नहीं है, क्योंकि अब्रॉड जाके कुछ खास अचीव होना नहीं है। द एक्सपीरियंस, द स्किल्स विच वी कैन ब्रिंग हेयर इन इंडिया हम वहाँ पर जाके नहीं कर सकते। वहाँ पर वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वी हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 10 to 12 years in order to get the maximum experience. So that is why यहाँ पर हमारे को बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देयर आर नो सो लॉन्ग पैरामीटर्स दैट वी हैव टू कम अक्रॉस। सो हम यहाँ पर जॉब क्यों नहीं कर सकते? सो हम से अगर आपने बिजनेस की बात करा ना, कई लोग ये सोचते हैं कि यार छोटा बिजनेस कैसे करेंगे, राइट? एवरीबडी जस्ट थिंक लाइक यार क्या मैं रेडी लगाऊंगा और मैं ट्रक चलाऊंगा, अरे उसमें क्या है, शर्म किस बात की है? बाहर जाके भी तो झाड़ू पोछे लगाना ही है ना, बिल्कुल सही बात है, बर्तन धोना ही है ना। देन व्हाई यू कैनॉट वांट टू डू अ जॉब ओवर हियर, बी योर ओन बॉस। या कोई फूड कोर्ट चला लो, कोई फूड चला लो, कुछ भी है अच्छा लगेगा। हाँ। सो हमारा यही ऑब्जेक्टिव था वीडियो बनाने का। फर्दर वीडियोस हम बनाएंगे, आपको बिज़नेस जिन्होंने क्रिएट किए हुए खुद से, जो खुद से सक्सेसफुल बने हैं, हम उनको एक्सप्लोर करें।